Hello friends, welcome back to BBS Baba Physics. Today we are going to discuss about Fermi-Dirac statistics. तो Fermi-Dirac statistics we have seen in the earlier lecture जो अपना probability density है यहाँ पे probability of occupation is जब हम single इसका करते हैं तो it would be like for a particular sub level GICNI because this will be holding Pauli exclusion principle. So एक space पे एक ही particle हो सकता है. So GI number of cells are there. So how we can choose GI number of cells and we have to put NI number of particles. So GIC NI, right? So this is multiplication because these are independent quantities. So when we want to apply GICNI is equal to GI factorial by NI factorial GI minus NI factorial. So after doing Stirling approximation, that is x ln x minus x will get this condition, and after differentiating, and because we are mentioning that it's a thermodynamic equilibrium condition, when we say this thermodynamic equilibrium, then it's the most probable state, that is the most probable state. When we say which is most probable state, then its differentiation will become zero. So after doing this we'll get this. Now we have three equations which we have already discussed earlier, because it's a thermodynamic equilibrium state, so total number of particles would be same, so there is no change. Dni is equal to 0, summation of dni is equal to 0. Similarly, beta, I am just multiplying alpha with it, and beta summation ei dni is equal to 0, and I am putting the third condition here. Now we are adding the first one and the third one, so gni minus ni plus alpha minus beta ei. So one more thing I want to just mention here, so you are taking Fermi-Dirac condition. If you would have taken Bose-Einstein, then this quantity would become gi plus of ni by ni, and when it's more Maxwell-Boltzmann लिया जाता तो then it would be ln gi by ni, right? So we'll see again those things when the lecture comes. So now we are adding all the three terms, तीनों term को add कर रहे हैं. So this quantity has to be zero, इस quantity को भी zero होना पड़ेगा, क्योंकि dni जो है trivial, ये zero हो गया तो trivial solution हो जाएगा. तो now तो इसको zero करने के लिए what we know, हमें पता है कि FEI is equal to what, ni by gi. F ये occupancy factor होता है, तो we get this form. Now अब हमें क्या निकालना है, our task is to find बीटा निकालना. तो dq is equal to what, tds होता है, right? tds होता है, and dq is equal to what here, ei dni, वही होगा ना. तो ei dni is equal to tds s is equal to kb ln omega, right? So ds is equal to kb d ln omega, right? वही लिखा है हमने यहाँ पे. अब ln ओमेगा यहाँ से देखिए, ln ओमेगा क्या है, ln ओमेगा इज इक्वल टू दिस टर्म, तो हमने वहां पे ln ओमेगा की जगह ये वाला टर्म लिख दिया. अब ये वाला जो टर्म है इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा ई है, माइनस ऑफ अल्फा, माइनस बाहर लिख दिया, माइनस अल्फा प्लस बीटा ई है. अब इस टर्म और इस टर्म को कंपेयर कर लीजिए, तो आपका आएगा ये वाला टर्म, तो क्या हो गया यहाँ पे, पहला टर्म तो माइनस अल्फा है, एंड इसको हटा दीजिए ऐसे ही, इसमें जीरो हो जाएगा. और दूसरा टर्म जो कंपेयर करना है तो क्या आ रहा है, प्लस ऑफ बीटा ई आई डी एन आई इज इक्वल टू केबीटी, तो मल्टीप्लाइड है ही, तो बीटा इज इक्वल टू ये सब कट जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू 1 बाई केबीटी. यही सेम चीज करेंगे बोस-आइंस्टीन में भी, और इसी टाइप का चीज करेंगे मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन में भी. ठीक है, तो बीटा की वैल्यू सेम ही आती है सब में. और अल्फा हम अपने हिसाब से इसके यूनिट को देखते हुए ई एफ टी बाई के बी लिख देते हैं, ई एफ बाई के बी टी. ठीक है, तो एफ ई आई जी आई बाई एन आई इज इक्वल टू 1 बाई ई टू द पावर ई आई माइनस ऑफ ई एफ बाई के बी टी प्लस 1. ये देखिएगा, ये आपका फर्मी एनर्जी है या कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी है, राइट? फर्मी एनर्जी या कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी, ठीक है. ओके, नाउ वी आर अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फीचर, अगर हम t इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, लेट्स इवैल्यूएट दिस इज व्हाट 1 e टू द पावर e i माइनस ई एफ बाई के वी टी. ठीक, केस लीजिए कि अगर ई आई ग्रेटर देन ई एफ है, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी, और नीचे पॉजिटिव, और नीचे क्या है, जीरो, तो e टू द पावर इन्फिनिटी हो गया, e टू द पावर 1 बाई e टू द पावर इन्फिनिटी हो गया ना, ये जीरो है ऊपर, तो e टू द पावर इन्फिनिटी, तो 1 बाई e टू द पावर इन्फिनिटी जीरो. तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ई आई की वैल्यू जीरो हो गई व्हेन ई आई इज ग्रेटर देन ई एफ, राइट? नाउ लेट्स सी अनदर केस, व्हेन ई आई इज लेस देन ई एफ, तो ई ऊपर वाली वैल्यू निगेटिव हो गई, और नीचे क्या है, जीरो, सॉरी जीरो है ना, टी इज इक्वल टू जीरो लिख रहे, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई, इसको देखिए 1 बाई ई टू द पावर, है ना, पॉजिटिव बाई जीरो प्लस 1,
और बाई 1 तो है ही नीचे, तो ये क्या क्वांटिटी हो गई, ये इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी 1 बाई टू द पावर इन्फिनिटी 0, तो ये क्या क्वांटिटी होगी, पूरा होके 1 हो गई। इसका मतलब नाउ अंडरस्टैंड दिस, at t is equal to 0 when ei is greater than ef, then fei is equal to 1 when ei is, sorry again I am writing, अगर t is equal to 0, t is equal to 0 पे when जो एनर्जी लेवल ऑफ ऑक्यूपेशन ई आई इज लेस देन ई एफ, ठीक है, तो एफ ई आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। अगर ई आई इज ग्रेटर देन ई एफ तो एफ ई आई इज इक्वल टू कोई ऑक्यूपेशन नहीं होगा, ऑक्यूपेंसी फैक्टर 0 होगा, ठीक, इज इक्वल टू 0। यही हम देख सकते हैं, ये हमने देखा। अब उसका ग्राफ बनाते हैं, व्हेन वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ देन विल गेट टू नो दैट इस टाइप का ग्राफ बनता है t इज इक्वल टू 0 पे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं ये थोड़ा सा इधर आ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ा रहा है ये थोड़ा सा और इधर आएगा, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व सेम रहेगा, उस हिसाब से आप सोच लीजिए। अच्छा एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि हाफ पे जो है सब लोग सेम पॉइंट पे कट कर रहा है। अब आप देखिए ना हाफ पे मतलब क्या हो गया कि ई एफ पे जब ई आई की वैल्यू ई एफ हो जाए, तो जैसे ई आई की वैल्यू ई एफ हो गई तो यहाँ 0 हो गई, तो 0 मतलब 1 हो गया, ई टू द पावर 0, तो 1 प्लस 1, तो एफ ई आई कोई भी टेम्परेचर हो, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, कोई भी टेम्परेचर हो अगर ई आई इज इक्वल टू ई एफ हो जा रहा है देन एफ ई ऑक्यूपेंसी फैक्टर जो है वो 0.5 हाफ हो जाता है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। अब हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस निकालना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस देखें कैसे निकालते हैं। ये एजम्पशन है कि नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स है। एफ ई आई ऑक्यूपेंसी फैक्टर है एन आई बाई जी आई, राइट, वी हैव ऑलरेडी सीन। तो एन आई इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ई आई इंटू जी आई, करेक्ट, एफ ई आई इंटू जी आई, बहुत सुंदर। नाउ वी नो अगर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना चाहते हैं, टोटल नंबर पार्टिकल्स, तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं, जीई जी आई को जीई एफ ई इंटू डी कर दिया, ठीक, 0 टू इन्फिनिटी। 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नाउ वी आर टेकिंग स्पेन इनटू कंसीडर। यहाँ पे प्लस ये रह सकता है फर्मियोन्स, तो निगेटिव भी तो ऐसे भी तो रह सकता है, यहाँ पे वायलेशन थोड़ी हुआ पॉलीज एक्सक्लूजन का। एक का एमएस प्लस हाफ है, एक का एमएस माइनस हाफ है, अब तक नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, करेक्ट। 2 से उसी तरह एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब जैसे आप लिखते थे तो एनर्जी इज इक्वल टू ई, एनर्जी इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई आई डी ई लिखेंगे, एन आई समेशन ऑफ डी आई ई आई एन आई, ठीक है। तो उसी तरह अगर एनर्जी एन आई ई आई होता है ना एनर्जी हर लेवल का, ठीक है, तो उसी तरह सबको समेशन कर दिए, तो एन आई खुद में एन आई इज इक्वल टू जी आई एफ ई, तो एन आई इज इक्वल टू जी ई एफ ई, उसमें ई मल्टीप्लाई कर दीजिए डी ई इंटू 2, तो टोटल एनर्जी आ गया एट टी। नाउ सी, अब जी ई हमें पता है, ये जी ई एनर्जी डेंसिटी मतलब कि ऑक्यूपेंसी डेंसिटी जो है, जी हम देख रहे थे, नहीं देखे थे वहां पे लास्ट लेक्चर में, मतलब जहाँ पे बेसिक हमने डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ सेल्स मतलब कि माइक्रो स्टेट्स कितने अवेलेबल हैं, जीआई नंबर ऑफ सेल्स, तो उस टाइप से हमने देखा था जब ऊपर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा था और नीचे एच क्यूब था और ऊपर 4 पाई पी स्क्वायर था, ठीक है, उसको एनर्जी के टर्म्स में किया था 2 पाई वी बाई एच क्यूब 2 एम पावर 3 बाई 2 ई पावर हाफ डी ई, करेक्ट, ये हमने कर रखा है। नाउ what we want to just we are replacing GE in this equation, तो 4 पाई यहाँ 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 पाई v 2m पावर 3 बाई 2 देन e टू पावर हाफ e टू पावर माइनस e f बाई kt प्लस 1, ठीक। अब हम t इज इक्वल टू 0 के लिए ले रहे हैं, व्हेन वी आर टेकिंग एट t इज इक्वल टू 0 देयर आर टू केसेस। हमें पता है fe इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 में क्या होता है, अगर ei ग्रेटर देन ef हो गया इज इक्वल टू, तो ये 0 हो जाएगा, तो वैनिश हो गया, तो हमें बस इंटीग्रेट कहाँ तक करना है, ef नॉट तक, ef 0 तक, और हमें पता है कि व्हेन ei इज लेस देन ef तो हमारा वैल्यू fe का 1 होता है। ये जो है पूरी क्वांटिटी जो है ये fe ही तो है, इसको 1 लिख दिया डायरेक्ट, तो बचा क्या, e टू द पावर हाफ बचा बस। नाउ लेट्स सी, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो क्या हो गया 3 बाई 2 नीचे 3 बाई 2 e टू द पावर f नॉट 3 बाई 2, बहुत सुंदर। तो हमें ये पता चल गया, तो n नॉट मतलब मैं यहाँ मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स है t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 हमारे पार्टिकल्स मिल गए। नाउ मैं एक बात बताऊंगा, मैं सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है t n इज इक्वल टू t मतलब t टेंपरेचर पर निकालूंगा, एंड वी हैव सेड दैट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, इसका मतलब पार्टिकल कहीं इधर से उधर नहीं जा रहा है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहेगा, ये प्रॉपर्टी यूज करनी है हमें। अब देखिए ई एफ नॉट, इसको फर्मी एनर्जी बोलते हैं, बहुत सुंदर बात है, इसको फर्मी एनर्जी बोलते हैं, इज डिफाइंड एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, पर ई एफ टी को जो है फर्मी एनर्जी नहीं बोलेंगे, इसको एनर्जी लेवल बोलेंगे या कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी बोल देंगे, पर फर्मी एनर्जी नहीं बोलेंगे। फर्मी इज अ वेरी स्पेसिफिक पर्टिकुलर टर्म व्हेन वी से दैट we have calculating at t is equal to 0. now moving ahead, उसी तरह एनर्जी निकालते हैं t is equal to 0 पे, तो अगेन
E G E F E G is equal to what 2 pi V by H cube 2m power 3 by 2 e to power half DE और Fe हमें पता है क्योंकि हम ई एफ नॉट के लिए पता है ई एफ नॉट व्हेन ई आई ग्रेटर देन ई एफ नॉट तो एफ ई इज इक्वल टू 0 लेस देन के लिए 1 तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है ठीक तो यहाँ 2 के लिए 4 पाई वी बाई एच की 2 में पावर 3 ई टू पावर 3 बाई 2 ई टू पावर 3 बाई 2 तो 5 बाई 2 हो जाएगा तो 5 बाई 2 ई टू पावर 5 बाई 2 एफ नॉट नाउ ई 0 मतलब एनर्जी एट टी इज इक्वल टू 0 टेम्परेचर 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या एनर्जी है नाउ तो आप देखिए मैंने यहाँ पे एन नॉट से रिप्लेस कर दिया क्यों भाई एन नॉट से रिप्लेस कर दिया एन नॉट को आप देखिए ना यहाँ पे एन नॉट को क्या लिखा हुआ है 4 पाई वी बाई एच की 2 पावर 3 बाई 2 यहाँ तक तो सेम ही है ना तो इसको लिख लीजिए 4 पाई वी 3 बाई 2 तो 2 भी है ही तो मतलब क्या कि 3 नहीं है तो 3 ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 तो नीचे रहेगा ही है ना तो ये सब करके फाइनली ये वैल्यू आ जाती है ठीक है तो इसका मतलब क्या अगर एवरेज एनर्जी ये तो क्या है टोटल एनर्जी एवरेज एनर्जी तो नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दीजिए 0.6 ई एफ नॉट ये याद रख लीजिए डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आ जाता है इसका एनर्जी एवरेज एनर्जी एट टी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0.6 ई एफ नॉट मतलब टी इज इक्वल टू 0 नाउ अब बहुत लेंदी कैलकुलेशन आने वाला है तो आई विल टेल यू अबाउट ईच एंड एवरी स्टेप्स जस्ट बियर विद मी है ना मैं सारे स्टेप्स के बारे में आपको बताऊंगा ठीक है लेट्स सी हाउ इट गोस नाउ एट एनी जनरल टेम्परेचर टी पे हमें निकालना है एंटी सेम फॉर्मूला ऊपर से लिखा है अब जो है एफ ई जो है 1 और 0 नहीं होगा दिस इज नॉट सो सिंपल राइट नाउ क्योंकि अब जो है टी इक्वल टू 0 कंडीशन ही नहीं है तो इस ई एफ ई को हमने यहाँ लिख दिया अब देखिए यहाँ पे एक सोमरफेल्ड लेमा का यूज करेंगे सोमरफेल्ड लेमा अब ये वाले जो इंटीग्रेशन है इसको हम करते हैं कैसे सोमरफेल्ड लेमा कहता है एफ एक्स माइनस कोई एक्स और एक्स नॉट का फंक्शन है और एक्स पावर एन डी एक्स तो इसका इंटीग्रेशन होता है आपको डायरेक्टली कोड करना है एक्स नॉट एन पावर प्लस 1 बाई एन प्लस देखिए ना यहाँ एन प्लस 1 है यहाँ भी एन प्लस 1 है 1 प्लस पाई स्क्वायर एन प्लस देखिए एन प्लस 1 एन प्लस 1 एन प्लस 1 यहाँ भी है एन प्लस 1 पाई स्क्वायर बाई 6 एक्स नॉट स्क्वायर सॉरी यहाँ पे अब देखिए एज्यूमिंग अब यहाँ पे हम इसको एक्स नॉट के फॉर्म में चेंज करें इस इंटीग्रेशन को ना व्हाट वी आर टेकिंग ई बाई के टी को हम ले लिए एक्स ई एफ बाई के टी को मैंने ले लिया एक्स नॉट ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया अब तो आप देखिए ई बाई के टी तो ई इज इक्वल टू व्हाट हो गया के टी एक्स तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया के टी डी एक्स राइट के टी डी एक्स तो अब आप चेंज कीजिए और ई इज इक्वल टू हाफ तो के टी एक्स पावर हाफ तो हम चेंज कर देंगे सारे तो आप इसको ये क्या हो गया चेंज करके के टी एक्स पावर हाफ e to the power x minus x naught plus 1 और de is equal to kt dx ठीक तो kt पावर 3 by 2 x पावर हाफ e to the power x minus x naught plus 1 dx यही आएगा ना तो अब इसको मान लीजिए ये जो फंक्शन है ये f x naught है ये वाला फंक्शन हो गया तो n naught यहाँ से n की वैल्यू क्या होगी 1 by 2 हो गई तो यहाँ पे रखेंगे तो x naught क्या माना था हमने x naught माना था हमने x naught क्या माना है हमने हाँ e f by kt तो ई एफ बाई के टी पावर 1 बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2 है ना 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 अब 1 प्लस पाई स्क्वायर एन प्लस 1 बाई 6 है ना और एक्स 3f बाई के टी का होल स्क्वायर ठीक वही चीज अब हम यहाँ लिख देंगे ठीक है यहाँ देखिए वही किया है हमने इसको मान लिया ई एफ बाई के इसको मान लिया ठीक है डी इसको ऐसे लिख दिया ठीक है अब इसको जस्ट आई एम रिप्लेसिंग जो ऊपर हम मैंने किया है वो यहीं पे कर रखा है ठीक है तो इसको रिप्लेस किया अगेन तो ई एफ बाई के ठीक है तो इस फॉर्म में आ गया ना अब जो है ये सब जो सारी चीज जो करे हैं वो आप यहाँ पुट कर दीजिए सो दिस इज इक्वेशन तो ये सब पूरा लेंदी सा बड़ा सा है नाउ सी वन थिंग यहाँ पे हम कर रहे हैं 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दे 8 पाई वी क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे यहाँ से ठीक है 2 पाई 3 इधर आ गया ई एफ पावर 3 बाई 2 ये है ठीक के टी पावर 3 बाई 2 कट गया नाउ अब देखिए ये अभी जो है बेटर फॉर्म में अब हम इसको ई एफ नॉट पावर 3 बाई 2 अब ई एफ नॉट क्या था हमने ई एफ नॉट जैसे ई एफ पावर 3 बाई 2 तो हमने इसको n इज इक्वल टू 0 पे हमने क्या दिखा था ऊपर n इज इक्वल टू ये n इज इक्वल टू हमने क्या कहा है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट टी टेम्परेचर पे निकाला और हमने अर्लियर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट टी इज इक्वल टू 0 टेम्परेचर पे निकाला था ये ऊपर की वैल्यू मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है तो अब देखिए इसमें तो बहुत सारा टर्म कॉमन आ रहा है बहुत सारा टर्म कॉमन आ रहा है 8 पाई ये सब जो है सब कॉमन है ना सब कॉमन है तो इसको जो है वी विल रिप्लेस है ना दोनों को इक्वेट कर दिया बेसिकली सॉरी रिप्लेस क्या इसको बराबर कर दीजिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सेम ही रहेगा तो बराबर कर दिए ठीक है इस दोनों को बराबर कर दिए तो बहुत सारे टर्म्स कट जाएंगे बचे हमारे ई एफ ये वाले अभी तो बस नॉर्मल बचा है ना दोनों तरफ
अंडर रूट 2/3 से कर दे रहे हैं, तो 2/3 कट गया, यहाँ पे 2/3 है ना। ई एफ नॉट मतलब कि एफ नॉट इस तरफ ले गए थे, ई एफ नॉट है ना, ई एफ पावर ई एफ निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बाइनोमियली इसको एक्सपैंड करेंगे तो प्लस प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 नीचे आएगा और 3 नीचे आएगा और 4, ठीक है। तो π²/12 करेक्ट। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन आया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आया, जो कि कह रहा है आपको ई एफ नॉट और ई एफ टी का रिलेशन देख रहा है। ये जो है आपका फर्मी एनर्जी है, व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दिस इज द फर्मी एनर्जी। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज सम कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी है ना, कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी हमने बात कर रहा था। और ई एफ फर्मी लेवल एट टी, ये क्या है, फर्मी लेवल एट टी, यही सेम चीज है, फर्मी लेवल एट टी, ठीक है। और लेट्स डिफाइन अ टर्म दैट EF by K is equal to TF, तो EF by K is equal to TF, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्टली फॉर्म आप याद रख सकते हैं। कैसे किया आपको हमने, मैं एक बार समराइज करता हूँ सिंपल। हमने क्या किया, जो फॉर्मूला था एन की फॉर्मूला में देखा, और उसमें FE को इस बार हम ना ही 1 ना ही 0 पुट किए, प्रॉपर इसको पुट किए। उसके बाद सोमरफेल्ड लेमा लगा के हमने इसको वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है। इसको दोनों को इक्वेट कर दिया, देन वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ दिस। Now, moving ahead, अब इसी तरह एनर्जी को भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, सिमिलर एकदम ऊपर वाला जो चीज है सेम चलेगा। वहां पे E मल्टीप्लाई होता है तो वहां पे E पावर हाफ इंटू E हो जाएगा 3/2। नाउ सेम चीज मैं कर रहा हूँ, सेम चीज यहाँ पे बस 5/2 आ जाएगा, करेक्ट, 5/2 आ जाएगा, 5/2 आ गया, ठीक है, वही लेमा लगाया, करेक्ट। तो वहां पे फिर से कैलकुलेट करने के बाद आपकी वैल्यू ये आ जाती है। और हमें ऑलरेडी पता है कि एन नॉट जो ऊपर से, मैं फिर से इसको सब्स्टिट्यूट करना चाह रहा हूँ। तो व्हाट वी सी कि जब हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो n की वैल्यू 3n के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, है ना, 3f0 3/2, 3f0 3/2, बहुत सारा टर्म्स कॉमन है, 4πh³ 2m पावर 3/2, ये सब को हटा के मैंने n0 लिख दिया, n लिख दिया, ठीक है। तो e जो है, e हमारे इसके टर्म्स में आ गया, ठीक है। एक बार देख लीजिए, बस जस्ट मैंने ऊपर से नीचे लिखा और कुछ भी नहीं किया, तो et का वैल्यू आ गया अपना ये, ठीक है। कैसे, नाउ मूविंग अहेड, सेम चीज मैं अभी लिख रहा हूँ, et अब इज इक्वल टू क्या है, EFT, और ये ऊपर से हमने EFT और ये जो फर्मी, ये जो फर्मी कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी है, ये फर्मी एनर्जी है, ठीक है। तो फर्मी लेवल भी इसको कह रहे हैं। तो अब क्या है, ऊपर वाला जो रिलेशन है मैंने फिर लिख दिया, एंड नाउ आई वांट टू सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप देखिए क्या हो जाएगा। अब जो है ये वाला जो टर्म है EF और यहाँ EF पावर 3/2 है। नाउ EF पावर EF नॉट, I am just replacing EFT here. So EFT is equal to E पावर 5/2 है, तो EF नॉट पावर 5/2 यही है, ठीक है। तो इस ये वाला जो पूरे क्वांटिटी है इस पे पावर 5/2 आ जाएगा, आ गया, ठीक। और नीचे तो एज इट इज लिख दिया हूँ, नीचे जो है एज इट इज लिख दिया हूँ, ठीक, एज इट इज लिख दिया हूँ, ठीक। और इसका जो खुद का पहले का है वो तो रहेगा ही, ठीक। नाउ तो यहाँ पे EF नॉट हो गया, मतलब फर्मी एनर्जी हो गया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई हुआ, अब ये इसके इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अब दोनों को जोड़िए, 5π²/8 माइनस ऑफ 5π²/24, बाद बाकी तो टर्म्स कॉमन ही है, लिख देंगे दोबारा 24, 5π² 3 - 1, तो क्या हो गया 10/24। ओके, यहाँ पे इसको यहाँ पे 10 होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो पर ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे। हाँ हाँ 2 आया है, ओके। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने क्या किया, इस दोनों को आप -5π² 24 प्लस ऑफ 5π²/8, ठीक है। तो ये दोनों चीज आ गई। अब इसको एक साथ आप लिख दीजिए, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी कमिंग, हाँ 5π²/12 आ रहा है ना, ठीक है। 5π²/12 ET लिख रहे हैं, ET को 3/5 एंड EF नॉट 5π²/12, ठीक है। तो ये वाला टर्म आप थोड़ा देख लीजिएगा मेरे हिसाब से, तो हाँ नहीं सही है, क्योंकि यहाँ नीचे 8 है, ठीक है। आप इसको इवैल्यूएट कर दीजिए, यही आ जाएगा, ओके। सो अब हमारा E निकल गया, हमारा बहुत बड़ा हरकुलियन टास्क हो गया, E निकाल लिया हमने। अब E निकाल लिया तो C क्या होता है, d/dt होता है, तो आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये सब तो वैसे ही रह जाएगा, 5π²/12, यहाँ 2, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, ये जो है सबको एक साथ लिख दीजिए और T के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक। ड्यू टू फर्मियोन्स एट लोअर टेम्परेचर, तो CV इज इक्वल टू AT/BT³, ये मॉलिक्यूलर कंट्रीब्यूशन होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होता है, और आइडियली B इज इक्वल टू 0 लेते हैं।
अब एक छोटा सा रिलेशन कभी कभी प्रूव करने आ जाता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/3 mn v RMS स्क्वायर, 1/3 रो v स्क्वायर भी लिखते हैं, रो mn नहीं हो जाएगा है ना, रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, है ना, मास बाई वॉल्यूम। तो ये जो है टोटल मास एक पार्टिकल का, ये n जो है नंबर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय वॉल्यूम, तो रो वी स्क्वायर सेम ही चीज लिखा हुआ है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज लाइक n को नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय v लिख सकते हैं, स्मॉल n को, ठीक। और वी आर एम एस क्या होता है, रूट अंडर 3 kT बाई n, वी आर एम एस इज इक्वल टू व्हाट, रूट 3 kT बाई m। तो v से हाँ ओके, एंड ये क्या है, एनर्जी लिखा है मैंने, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल मास हो जाएगा m इंटू एन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स v स्क्वायर। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो pv इज इक्वल टू 2/3e, ऐसे ये डायरेक्टली याद होना चाहिए, pv इज इक्वल टू 2/3e होना चाहिए, ठीक। pv इज इक्वल टू 2/3e, तो et हमने निकाल रखा है, और pv क्या चाहिए, pv क्या होगा 2/3, 2/3, 3 कट जाएगा तो 2/5, वही ऊपर वाला इक्वेशन लिख दिया है। नाउ ये जो पीटी है, ये पीटी क्या है भैया, ये किसी टी टेम्परेचर पे प्रेशर है, ठीक, टी किसी टी टेम्परेचर पे फर्मियोन्स के द्वारा प्रेशर लगाया गया। अब टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे देख लेते हैं, जनरली ऐसा ही पूछा है, टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे, ये सब 0 हो जाएगा, खत्म, बचा ये वाला क्वांटिटी। अब ये वाला जो क्वांटिटी ई एफ, ये जो फर्मी एनर्जी है, आप फिर से वही बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको दिया हुआ है तो आप हमारा रिलेशन ऊपर से लिखा हुआ है ई एफ नॉट को आप वहां पे रिप्लेस कर दीजिए, एन इज इक्वल टू क्या है, नंबर डेंसिटी एन बाई वी है, नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू एन बाई वी, एन इज इक्वल टू वी कट जाएगा तो 4 पाई बाई एच क्यूब, 2m पावर 3/2, 2/3 ई टू द पावर, सॉरी ई एफ नॉट पावर 3/2। नाउ मैंने क्या किया, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 8 पाई, अब यहाँ पे h बाई 8 पाई क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये h क्यूब होगा, तो 8 पाई क्यूब, यहाँ 3 से यहाँ 3 लिख दिया, 2m और ई एफ नॉट पावर 3/2 सेम है, राइट। सो उसके बाद मैंने क्या करा है, इसको जो हो गया 8 पाई से यहाँ पे क्या बचा, पाई स्क्वायर बचा, राइट। तो सबको इधर ले गया हूँ, 3 पाई स्क्वायर एन, 3 पाई स्क्वायर 3 हो गया 3, यहाँ पे पाई स्क्वायर बचा इंटू एन, ठीक है यहाँ, ओके। और यहाँ h रहने दिया, h क्यूब रहने दिया हो, तो इसको h क्यूब के h स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3/2, 2 से 2 करे तो h क्यूब बच गया, राइट। तो ई एफ नॉट यहाँ से क्या आया, 3/2 है तो 2/3 कर दीजिए इसका, 2/3, और ये तो ऐसे ही रह जाएगा, h स्क्वायर बाई 2m ऐसे ही रह जाएगा। अब ना सारी जो एकदम की है सारी इसको यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पे व्हेन यू आर पुटिंग इट, देन what we get is this value, and this जो n है, n पावर 5/3 and 2/3 plus 1 is equal to 5/3, यही प्रूफ करने आता है कभी कभी, that the pressure exerted by fermions at t is equal to 0 is directly proportional to n power 5/3, ये प्रूफ करने आता है। So I would just summarize what we have done in last 1-2 minutes। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का देख लिया, जो आया 1/e to the power ei minus ef by kt plus 1, right, ये आया। उसके बाद what we tried to calculate number of particles at a particular temperature, तो क्या हो गया, fe ge de, ठीक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे, स्पिन को भी कंसीडर कर रहे थे। उसी तरह एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू fe ge de, ठीक है। ge को हमने किस में पुट किया, ge को पुट किया हमने 2 पाई, करेक्ट 4 पाई भी था ना, 4 पाई v बाई h क्यूब, 2m पावर 3/2 e टू द पावर हाफ, है ना, de e टू द पावर हाफ, ठीक है, e टू द पावर हाफ GED, तो ये इसको पुट किया। नाउ अब हमने देखा कि अगर t इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो f ei की जो वैल्यू है वो 1 हो जाती है, व्हेन ei इज लेस देन ef, 0 हो जाती है व्हेन ei ग्रेटर देन ef। तो उन केस में n को निकाला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी को निकाला, ठीक है। तो उससे फर्मी एनर्जी का ये वैल्यू इसके टर्म्स में पता चल गया। अब हम किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे निकालते हैं, वहां पे एन टी को निकालते हैं, एन टी को जो है इक्वेट कर देते हैं एन जीरो को, तो ई एफ टी और ई एफ जीरो में हमें रिलेशन पता चल जाता है। ये रिलेशन पता चल जाता है, उसके बाद हम ई टी निकालते हैं, ई टी निकालते हैं, ई टी निकालते हैं, तो फिर लिखते हैं, फिर इसको रिप्लेस करते हैं, ई टी निकालने के बाद सी वी निकालते हैं, डी ई बाई डी टी करते हैं। उसके बाद हमें पी इज इक्वल टू पता है, पी इज इक्वल टू हमें ये रिलेशन पता होता है कि P इज इक्वल टू 2e/3v होता है, P इज इक्वल टू 2e/3v होता है। तो हम जो है अपना E वाला जो इक्वेशन है उसको पुट करते हैं, तो वहां से जब t इज इक्वल टू 0 के लिए पुट करते हैं तो n पावर 5/3 प्रेशर एक्सर्टेड बाय फर्मियोन्स इज इक्वल टू n जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो यही हमने किया। तो आई थिंक फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक हमने मोस्ट ऑफ थिंग्स कवर कर लिए हैं।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। कोई सजेशंस है तो प्लीज लेट अस नो। थैंक यू वेरी मच।